بارش کی ہلکی ہلکی بوندیں شہر کی سڑکوں کو گیلا کر رہی تھیں، مگر اس رات ہوا میں صرف ٹھنڈک نہیں، ایک عجیب سی بے چینی بھی تھی۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ سٹی ہسپتال کے ایمرجنسی گیٹ کے باہر ایک لڑکا بے چینی سے آدیر الفادیر چل رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے نیچے گہری تھکن تھی، کپڑوں پر خون کے چھوٹے چھوٹے دھبے، اور ہاتھ ابھی تک کانپ رہے تھے۔ اس کا نام تھا ایان موک۔ ڈاکٹر باہر آیا۔ اب پیشنٹ کے کیا لگتے ہیں؟ ایان ایک لمحے کے لیے خاموش رہا، پھر دھیرے سے بولا، میں اس کا کچھ بھی نہیں لگتا۔ ڈاکٹر نے حیرانی سے کہا، پھر اب اسے اتنی بری حالت میں ہسپتال کیوں لائے؟ ایان کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر دوبارہ گھوم گیا، بارش، اندھیرا، اور سڑک کے بیچ بے ہوش پڑی ہوئی ایک لڑکی۔ اس کی زندگی کی سب سے بڑی کہانی شاید اسی رات شروع ہونے والی تھی، اور اسے ابھی تک پتہ بھی نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے فائل بند کی۔ پیشنٹ کافی کریٹیکل ہے، ایکسیڈنٹ بہت سیریس تھا، اگر ہوش آ گیا تو ٹھیک، ورنہ ڈاکٹر کی بات ادھوری رہ گئی۔ ایان کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ وہ بینچ پر بیٹھ گیا، اور پہلی بار اس نے اس لڑکی کا چہرہ ٹھیک سے یاد کرنے کی کوشش کی۔ سفید چہرہ، خون سے بھیگی زلفیں، اور ہاتھ میں زور سے پکڑی ہوئی ایک چھوٹی سی ڈائری۔ ایان نے جیب سے وہ ڈائری نکالی جو حادثے کے وقت اس کے ہاتھ میں تھی۔ ڈائری کھولی، پہلا جملہ لکھا تھا، اگر مجھے کچھ ہو جائے تو میری کہانی ضرور پوری کر دینا۔ ایان کا دل ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ کون ہو تم؟ اس نے دھیرے سے کہا۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ ڈائری اس کی زندگی بدل دے گی۔ ڈائری کے پہلے صفحے پر ایک نام لکھا تھا، زویا، اور نیچے ایک جملہ، مجھے کسی سے محبت ہو گئی ہے، لیکن وہ مجھے کبھی نہیں مل سکتا۔ ایان نے ڈائری بند کر دی۔ ڈرما کوئین، اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، مگر دل میں عجیب سی کسک اٹھ رہی تھی۔ اچانک نرس بھاگتی ہوئی باہر آئی۔ پیشنٹ کو ہوش آ رہا ہے۔ ایان خود کو روک نہ سکا۔ وہ ICU کی طرف بھاگ گیا۔ بیڈ پر وہ لڑکی لیٹی تھی، آنکھیں آہستہ آہستہ کھل رہی تھیں۔ ایان دروازے پر رک گیا۔ لڑکی نے آنکھیں کھولیں، سیدھا ایان کی طرف دیکھا، اور بہت کمزور آواز میں کہا، ایان۔ ایان ساکت رہ گیا۔ اس نے اسے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا۔ پھر اس کا نام کیسے جانتی تھی؟ کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ ایان آہستہ آہستہ اس کے پاس گیا۔ تم مجھے جانتی ہو؟ لڑکی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں تمہیں بہت اچھی طرح جانتی ہوں۔ ایان کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کیسے؟ لڑکی نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کیونکہ میں تمہاری محبت ہوں۔ ایان ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ کیا؟ ڈاکٹر حیران رہ گیا۔ نرس ساکت کھڑی تھی، اور ایان کے ذہن میں صرف ایک سوال گونج رہا تھا، یہ لڑکی کون ہے جو مجھ سے زیادہ جانتی ہے؟ اسی لمحے اس کی زندگی کا پہلا راز شروع ہو چکا تھا، اور اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ صرف محبت کی کہانی نہیں، بلکہ ایک ایسی کہانی ہے جس میں محبت، راز اور قسمت تینوں ایک ساتھ چل رہے ہیں۔ کمرے میں خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ ایان ابھی تک صدمے میں کھڑا تھا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک جملہ گونج رہا تھا، میں تمہاری محبت ہوں۔ وہ لڑکی کمزور سانسوں کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی، جیسے برسوں سے اسی لمحے کا انتظار کر رہی ہو۔ ایان نے خود کو سنبھالا۔ تم شاید مجھے کسی اور سمجھ رہی ہو، میں تمہیں جانتا تک نہیں۔ لڑکی کی آنکھوں میں درد آتر آیا۔ تم مجھے نہیں جانتے، مگر میں تمہیں بچپن سے جانتی ہوں۔ ایان کا دل زور سے دھڑکا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ زویا۔ ایان کے ذہن میں فوراً وہ ڈائری کا پہلا صفحہ گھوم گیا۔ زویا، یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا تھا۔ ایان نے کرسی کھینچ کر بیڈ کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، تم نے میرا نام کیسے لیا؟ زویا نے آنکھیں بند کیں، جیسے ہمت جمع کر رہی ہو، کیونکہ میں تمہیں 7 سال سے ڈھونڈ رہی تھی۔ ایان چونک گیا۔ واٹ؟ نرس نے ڈاکٹر کو اشارہ کیا کہ مریض کو آرام کی ضرورت ہے، مگر زویا نے ایان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پلیز مت جاؤ، اگر تم چلے گئے تو میں دوبارہ تمہیں نہیں ڈھونڈ پاؤں گی۔ ایان نے پہلی بار اس کے ہاتھ کی کپکپاہٹ محسوس کی۔ وہ ہاتھ واقعی ڈرا ہوا تھا، جیسے کچھ کھونے سے خوفزدہ ہو۔ ایان بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہے، میں کہیں نہیں جا رہا۔ اب سچ بتاؤ۔ زویا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ 7 سال پہلے تم نے میری جان بچائی تھی۔ ایان کی پیشانی پر شکنیں پڑ گئیں۔ میں؟ کب؟ کہاں؟ زویا نے آہستہ سے کہا، کالج کے باہر،
ایک कार एक्सीडेंट। अचानक अयान की आंखों के सामने एक पुराना मंजर चमका। कॉलेज के दिन, हुजूम, सड़क पर जख्मी लड़की और एक एम्बुलेंस। वो लड़की का चेहरा इसने कभी नहीं देखा था, क्योंकि इस दिन वो जल्दी में चला गया था। अयान आहिस्ता से बोला, वो लड़की तुम थी? जोया ने सर हिला दिया। हाँ, और इस दिन के बाद मैं तुम्हें तलाश करती रही। अयान साकित रह गया। लेकिन क्यों? सिर्फ इसलिए कि मैंने तुम्हें अस्पताल पहुंचाया? जोया ने आंखें बंद की और कहा, नहीं, इसलिए कि इस दिन पहली बार मुझे किसी से मोहब्बत हो गई थी। अयान का दिल जैसे रुक सा गया। वो खड़ा हो गया। ये पागलपिन है। जोया की आंखों में आंसू भर गए। मोहब्बत पागलपिन ही तो होती है। कमरे में दोबारा खामोशी छा गई। अयान दरवाजे की तरफ बढ़ा, मगर अचानक जोया की आवाज आई, अगर आज तुम न मिलते तो शायद मैं मर जाती। अयान रुक गया। क्या मतलब? जोया ने आहिस्ता से कहा, मेरा एक्सीडेंट हादसा नहीं था। अयान ने पलट कर देखा। क्या? जोया की आवाज कांप रही थी। किसी ने मुझे मारने की कोशिश की है। अयान के कदम जैसे जमीन में जिम गए। ये कहानी अब सिर्फ मोहब्बत नहीं रही थी, ये कहानी खतरनाक हो चुकी थी। और अयान को अंदाजा नहीं था कि वो अनजाने में किस तूफान में कदम रख चुका है। अयान के दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता जोया के बेड के करीब आया। किसी ने तुम्हें मारने की कोशिश की? क्यों? तुम कौन हो? जोया ने नजरें झुका ले, जैसे वो सच बोलने से डर रही हो। अयान, अगर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूं तो शायद तुम मेरी मदद करना छोड़ दो। अयान ने सख्त लहजे में कहा, अब बात यहां तक पहुंच चुकी है, अब पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जोया ने एक गहरी सांस ली। मेरा पूरा नाम जोया खान है। अयान ने बेख्याली में सर हिलाया। तो? जोया ने धीरे से कहा, खान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज सुना है? अयान की आंखें फैल गईं। खान ग्रुप? शहर की सबसे बड़ी बिजनेस एम्पायर। वो तुम्हारा खानदान है? जोया ने सर हिला दिया। मैं इस कंपनी के मालिक की बेटी हूं। कमरे की फिजा बदल गई। अयान ने हैरानी से कहा, तो तुम कह रही हो कि कोई तुम्हें विरासत की वजह से मारना चाहता है? जोया की आंखों में खौफ उतर आया। हाँ, और वो कोई बाहर का नहीं, हमारे अपने घर का है। अयान के रूंगटे खड़े हो गए। कौन? जोया की आवाज कांप गई। मेरे चचा। अयान ने बेयकीनी से कहा, ये तो फिल्मी लग रहा है। जोया की आंखों से आंसू बहने लगे। काश ये फिल्म होती तो मैं हंसती रहती। अयान खामोश हो गया। जोया बोलती रही, अबू पिछले 6 महीनों से बीमार है। कंपनी का सारा कंट्रोल आर्जी तौर पर चचा के पास है, और अगर मैं रास्ते से हट जाऊं तो सब कुछ हमेशा के लिए उनका हो जाएगा। अयान के जहन में सब कुछ जलने लगा। इसीलिए तुम पर हमला हुआ? जोया ने सर हिलाया। और वो नहीं जानते कि मैं जिंदा हूं? अयान चौंक गया। क्या मतलब? जोया ने आहिस्ता से कहा, मेरी कार दरिया में गिरी थी। सबको लगता है मैं मर चुकी हूं। अयान साकित रह गया। यानी दुनिया के लिए जोया मर चुकी थी? कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। फिर जोया ने आहिस्ता से कहा, अयान, अब मेरे पास कोई नहीं, न खानदान, न दोस्त, न घर। वो रो पड़ी, बस तुम हो। अयान का दिल हल गया। वो चंद घंटे पहले तक इस लड़की को जानता भी नहीं था, और अब वो इसकी पूरी दुनिया बन चुका था। अयान ने आहिस्ता से कहा, मैं हूं ना? जोया ने पहली बार सुकून की सांस ली। लेकिन वो दोनों नहीं जानते थे। अस्पताल के बाहर एक गाड़ी खड़ी थी, और इस गाड़ी में बैठा एक आदमी फोन पर कह रहा था, लड़की जिंदा है, इसे अस्पताल लाया गया है। फोन के दूसरी तरफ खामोशी थी। फिर एक सर्द आवाज आई, इस बार गलती नहीं होनी चाहिए। खतरा उन तक पहुंच चुका था। रात के 3 बज रहे थे। अस्पताल के कॉरिडोर में अजीब सी खामोशी थी। सिर्फ मशीनों की बीप बीप की आवाज सुनाई दे रही थी। जोया सो रही थी, मगर अयान की आंखों से नींद कोसों दूर थी। इसके जहन में एक ही बात घूम रही थी, वो तुम्हें दोबारा मारने की कोशिश करेंगे। अचानक अयान को महसूस हुआ जैसे कोई दरवाजे के बाहर रुका हो। हल्की सी आहट। अयान फौरन उठ खड़ा हुआ। कौन है? कोई जवाब नहीं आया। अयान ने आहिस्ता से दरवाजा खोला। कॉरिडोर खाली था, मगर दूर लिफ्ट के पास एक आदमी खड़ा फोन पर बात कर रहा था। जैसे ही इसकी नज़र अयान पर पड़ी, वो फौरन दूसरी तरफ मुड़ गया। अयान के दिल में खतरे की घंटी बज उठी। वो तेजी से कमरे में वापस आया। जोया, उठो।
ज़ोया घबरा कर जाग गई। क्या हुआ? अयान ने संजीदा लहजे में कहा। हम यहाँ महफूज नहीं हैं। ज़ोया के चेहरे का रंग अलिफाड़ गया। क्या वो लोग यहाँ तक पहुँच गए? अयान ने सर हिला दिया। मुझे यकीन है। ज़ोया के हाथ कांपने लगे। अब क्या करें? अयान ने फैसला कर लिया। हम अभी यहाँ से निकल रहे हैं। क्या? इस हालत में अगर हम नहीं निकले तो शायद सुबह ना देख सकें। ज़ोया की आंखों में खौफ साफ नजर आ रहा था। अयान ने इसका हाथ थामा। ट्रस्ट मी। ज़ोया ने सर हिला दिया। अयान ने जल्दी से नर्स को बुलाया और झूठ बोला कि मरीज को दूसरे अस्पताल शिफ्ट करना है। कुछ ही देर में वो दोनों पिछले दरवाजे की तरफ जा रहे थे। बारिश अब भी हो रही थी। रात और भी तारीख हो चुकी थी। वो दोनों गाड़ी तक पहुंचने ही वाले थे कि अचानक देनानाउड़ गोली की आवाज़ गूंजी। ज़ोया चीख पड़ी। अयान ने फौरन इसे अपनी तरफ खींच लिया और गाड़ी के पीछे छुपा दिया। पार्किंग में 3 आदमी खड़े थे, हाथों में गन्स। ज़ोया कांपने लगी। वो आ गए। अयान का दिल जोर से धड़क रहा था, मगर इसने खुद को मजबूत रखा। डरना मत, हम बच नहीं पाएंगे अयान ने इसकी आंखों में देखकर कहा। जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। अचानक एक और गोली चली। शीशा टूट गया। अयान ने गाड़ी स्टार्ट की और पूरी रफ्तार से पार्किंग से बाहर निकल गया। गोलियां गाड़ी के पीछे लगती रहीं, मगर चंद लम्हों बाद वो शहर की सुनसान सड़कों पर थे। ज़ोया रो रही थी। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। अयान ने सड़क पर नजरें जमाए कहा। नहीं, अब ये सब हमारी कहानी है। ज़ोया ने पहली बार उसकी तरफ देखा। हमारी कहानी। गाड़ी अंधेरे में आगे बढ़ती गई, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि ये भागना सिर्फ शुरुआत थी। असल तूफान अभी बाकी था। बारिश अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रही थी। गाड़ी सुनसान सड़कों पर तेजी से दौड़ रही थी और ज़ोया की सांसें अब भी बेतरतीब थीं। हम कहाँ जा रहे हैं? इसने आहिस्ता से पूछा। अयान ने मुख्तसर जवाब दिया। मेरे घर। ज़ोया चौंक गई। तुम्हारे घर? मगर क्या ये महफूज है? अयान ने हल्की सी मुस्कुराहट दी। ये जगह किसी को नहीं मालूम, और अब तुम वहां महफूज हो। कुछ देर बाद गाड़ी एक छोटे मगर खूबसूरत घर के सामने रुक गई। ये कोई बंगला नहीं था, ना ही कोई शाहाना घर, मगर इसमें सुकून था, सादगी थी और घर जैसा एहसास था। ज़ोया आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी से उतरी। इसके कदम अभी भी कमज़ोर थे। ये तुम्हारा घर है? अयान ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा। हाँ, और आज से तुम्हारी पनाह भी। ज़ोया की आंखों में अजीब सी नमी आ गई। घर के अंदर दाखिल होते ही गर्म रोशनी ने उनका इस्तकबाल किया। दीवारों पर तस्वीरें लगी थीं, एक औरत की, एक छोटे बच्चे की और एक फैमिली की मुस्कराती हुई तस्वीर। ज़ोया रुक गई। ये? अयान की आवाज़ नर्म हो गई। मेरी माँ। ज़ोया ने तस्वीर को गौर से देखा। वो कहाँ है? अयान ने नज़रें चरा लें। 4 साल पहले वो हमें छोड़कर चली गईं। कमरे में खामोशी छा गई। ज़ोया ने धीरे से कहा, मुझे मुआफ़ करना। अयान ने सर हिला दिया। जिंदगी किसी को मुआफ़ नहीं करती। ज़ोया सोफे पर बैठ गई। इसके हाथ अब भी कांप रहे थे। अयान किचन में गया और पानी का गिलास ले आया। पियो, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। ज़ोया ने गिलास थामा, मगर अचानक इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अयान घबरा गया। क्या हुआ? दर्द हो रहा है? ज़ोया ने सर हिलाया। नहीं, मुझे पहली बार महफूज महसूस हो रहा है। अयान खामोश हो गया। ये जुमला इसके दिल को छू गया था। कुछ लम्हों बाद बिजली चली गई। घर अंधेरे में डूब गया। ज़ोया घबरा गई और बेइख्तियार अयान का हाथ पकड़ लिया। अयान एक लम्हे के लिए साकित रह गया। अंधेरे में सिर्फ बारिश की आवाज़ थी और दोनों की धड़कनें। अयान ने आहिस्ता से कहा, ड्रो मत, मैं हूं ना। ज़ोया की आवाज़ कांपी। मुझे अंधेरे से नहीं, तन्हाई से डर लगता है। अयान का दिल जैसे पिघल गया। इसने पहली बार उसका हाथ मजबूती से थाम लिया। अब तुम कभी अकेली नहीं हो। ज़ोया की आंखों से आंसू बहने लगे। वो लम्हा इन दोनों की जिंदगी का पहला सुकून था, लेकिन वो नहीं जानते थे कि उसी वक्त शहर के दूसरे कोने में एक शख्स गुस्से से चीख रहा था। वो लड़की अभी तक जिंदा कैसे है? मेज पर हाथ मारने की आवाज़ गूंजी। इस बार मैं खुद जाऊंगा। खतरा अब उनके और करीब आ चुका थे। रात गुजर चुकी थी। सुबह की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। ज़ोया सोफे पर सो गई थी। इसका सर अयान के कंधे पर था। अयान पूरी रात नहीं सोया था। वो बस खामोश बैठा इसे देखता रहा।
इसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि एक अजनबी लड़की उसकी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा कैसे बन गई। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। जोया घबरा कर उठ बैठी। वो लोग? अयान ने हाथ के इशारे से इसे खामोश रहने को कहा। वो आहिस्ता से दरवाजे के करीब गया और झरोके से बाहर देखा। बाहर उसका दोस्त खड़ा था, रेहान। अयान ने दरवाज़ा खोला। तुम यहाँ कैसे? रेहान अंदर आया और फौरन दरवाज़ा बंद कर दिया। इसके चेहरे पर संजीदगी थी। तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हो अयान। अयान चौंका। क्या मतलब? रेहान ने जोया को देखा तो ये है जोया खान। जोया के हाथ कांपने लगे। आप मुझे जानते हैं? रेहान ने गहरी सांस ली। पूरा शहर जानता है। अयान हैरान रह गया। कैसे? रेहान ने मोबाइल निकाला और न्यूज़ खोली। हेडलाइन थी, खान ग्रुप की वारिस जोया खान हादसे में जाँ बहक। जोया के हाथ से मोबाइल गिर गया। मैं मर चुकी हूँ, रेहान ने संजीदगी से कहा। दुनिया के लिए? हाँ, अयान ने बेचैनी से पूछा। और दुश्मन? रेहान ने आहिस्ता से कहा। वो कोई आम आदमी नहीं, जोया के चचा असद खान हैं। जोया का रंग अलिफाड़ गया। वो बहुत खतरनाक आदमी है। इसके पास ताकत भी है, पैसा भी, और लोग भी। अयान ने माटियां भींच लें। तो अब हम क्या करें? रेहान ने सीधा जवाब दिया। तो जोया हमेशा छपी रहे। आप फिर असद खान का मुकाबला करे। कमरे में खामोशी छा गई। जोया ने धीरे से कहा, मैं भाग भाग कर नहीं जी सकती। अयान ने इसकी तरफ देखा। जोया की आंखों में खौफ नहीं, अज़्म था। मैं वापस जाऊंगी और अपना हक वापस लूंगी। अयान ने हैरत से पूछा, तुम तैयार हो इस जंग के लिए? जोया ने पहली बार पुरएतमाद आवाज में कहा, अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं हर जंग लड़ सकती हूं। अयान के दिल में अजीब सी हरारत फैल गई। ये सिर्फ जिम्मेदारी नहीं रही थी, ये रिश्ता बन चुका था। लेकिन वो नहीं जानते थे, इसी वक्त एक सिया गाड़ी उनके घर के बाहर आकर रुकी थी और इसमें बैठा शख्स धीरे से बोला, आखिर तुम मिल ही गईं भतीजी। खतरा उनके दरवाजे तक पहुंच चुका। सुबह के सिर्फ 8 बजे थे, मगर घर के बाहर गैर मामूली खामोशी थी। अयान किचन में था जब अचानक इसे बाहर गाड़ी के दरवाजे बंद होने की आवाज आई। ठक। अयान फौरन खिड़की के पास गया और उसका दिल धक से रह गया। घर के बाहर 3 सिया गाड़ियां खड़ी थीं। जोया, इसकी आवाज धीमी मगर संजीदा थी। वो हमें ढूंढते हुए यहां तक आ गए हैं। जोया के हाथ से चाय का कप गिर गया। क्या? रेहान फौरन खड़ा हो गया। कितने लोग हैं? अयान ने पर्दा हटाया। कम अज कम 8। जोया के चेहरे का रंग अलिफाड़ गया। हम बच नहीं सकते, अयान ने मजबूत लहजे में कहा। हम भागेंगे नहीं। जोया ने हैरत से इसकी तरफ देखा। क्या मतलब? अयान ने दराज खोली और एक पिस्तौल निकाला। जोया चौंक गई। तुम्हारे पास गन क्यों है? अयान ने मुख्तसर जवाब दिया, शहर महफूज जगह नहीं है। दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। धाड़ धाड़ धाड़। दरवाज़ा खोलो। बाहर से एक भारी आवाज आई। जोया कांपने लगी। यही है? अयान ने पूछा। कौन? जोया की आवाज बमुश्किल निकली। असद खान। कमरे में खामोशी छा गई। अयान ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद कीं, फिर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। रेहान ने रोकने की कोशिश की। पागल हो गए हो? वो तुम्हें मार देंगे, अयान ने पीछे मोड़कर कहा। जब बात इसकी हो तो डर खत्म हो जाता है। जोया की आंखों में आंसू आ गए। दरवाज़ा दोबारा जोर से बजा। आखिरी बार कह रहा हूं, दरवाज़ा खोलो। अयान ने लाक खोला। दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुला। सामने एक बावकार मगर खौफनाक शख्सियत खड़ी थी। सफ़ेद बाल, सिया सूट और आंखों में सर्दी। असद खान। इसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, आखिर तुम मिल ही गईं भतीजी। जोया के कदम लड़खड़ा गए। अयान इसके सामने आकर खड़ा हो गया। यहां से चले जाएं। असद खान हंस पड़ा। वरना? अयान ने पिस्तौल सीधी इसकी तरफ कर दी। वरना ये होगा। असद खान की मुस्कुराहट खत्म हो गई। चंद लम्हों की खामोशी, फिर उसने हाथ उठाकर अपने आदमियों को इशारा किया और अगले ही लम्हे गोलियां चलना शुरू हो गईं। गोलियों की आवाज से पूरा घर गूंज उठा। देना नाउड़। जोया चीख पड़ी। रेहान ने फौरन इसे नीचे झुका दिया। अयान ने दरवाज़ा बंद करके लॉक किया और दीवार के पीछे पोजीशन ले ली। रेहान, पिछला दरवाज़ा चेक करो। रेहान फौरन भागा। बाहर से आवाज आई, दरवाज़ा तोड़ दो। जोया के हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। अयान, हम मर जाएंगे। अयान ने इसकी तरफ देखा। इसकी आंखों में अजीब सा सुकून था। जब तक मैं हूं
कोई तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता। अचानक दरवाज़ा जोर से हिला, धड़ाम, दूसरी ज़रब, धड़ाम, तीसरी ज़रब, दरवाज़ा टूट गया। 4 आदमी अंदर घुस आए। अयान ने फौरन फायर किया। एक आदमी ज़मीन पर गिर गया, बाकी 3 छप गए और फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां दीवारों से टकरा रही थीं। ज़ोया आंखें बंद करके कानों पर हाथ रखे बैठी थी। रेहान वापस आया, पिछला रास्ता साफ है। अयान ने ज़ोया का हाथ पकड़ा। चिल्लू, वो तीनों पिछले दरवाजे से भागे। पीछे से आवाज़ आई, उन्हें जाने ना दो। वो तीनों गिल्ली की तरफ भाग रहे थे कि अचानक सामने एक और गाड़ी आकर रुक गई। ज़ोया रुक गई। हम गिनर चुके हैं। गाड़ी का दरवाज़ा खुला। असद खान खुद बाहर निकला। वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ने लगा। कितना भागोगी? आखिरकार वापस मेरे पास ही आना था। ज़ोया के आंसू बहने लगे। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? असद खान की आंखों में नफरत चमकी। तुम्हारा कसूर यह है कि तुम जिंदा हो। अयान ने ज़ोया को अपने पीछे कर लिया। अगर इसे कुछ हुआ तो असद खान ने हंसते हुए बात काट दी। तुम मर जाओगे। इसने अपने आदमियों को इशारा किया। इन्होंने गन सीधी कर लें। ज़ोया ने आंखें बंद कर लें। अचानक पुलिस सायरन की आवाज़ गूंज उठी। असद खान का चेहरा बदल गया। पुलिस? रेहान मुस्कुराया। मैंने कॉल कर दी थी। असद खान ने गुस्से से कहा, यह ख़त्म नहीं हुआ। वो तेज़ी से गाड़ी में बैठा और वहां से निकल गया। पुलिस की गाड़ियां करीब आ रही थीं। ज़ोया की टांगों ने जवाब दे दिया। वो ज़मीन पर बैठ गई। अयान इसके पास बैठ गया। तुम ठीक हो? ज़ोया ने आंसुओं के साथ कहा, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। अयान साकित रह गया। गोलियां, खौफ, दुश्मन, सब कुछ एक लम्हे में खामोश हो गया। सिर्फ एक जुमला बाकी रह गया था, मोहब्बत। पुलिस की गाड़ियां आ चुकी थीं, मगर अयान और ज़ोया की दुनिया जैसे रुक गई थी। ज़ोया के अल्फाज अभी तक फिज़ा में गूंज रहे थे, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। अयान खामोश था। इसने कभी सोचा भी नहीं था कि सब कुछ इतनी जल्दी बदल जाएगा। ज़ोया ने नज़रें झुका लें। मुझे पता है ये वक्त नहीं है, मगर मैं सच छुपा नहीं सकती। अयान ने आहिस्ता से पूछा, तुम्हें मुझसे मोहब्बत कब हुई? ज़ोया हल्का सा मुस्कुराई, शायद इस दिन, जब तुमने मुझे अस्पताल में छोड़ने के बाद पलट कर भी नहीं देखा था। अयान हैरान हुआ। क्या? हाँ, क्योंकि इस दिन पहली बार किसी ने मेरे नाम, मेरे पैसे, मेरी हैसियत के बगैर मेरी मदद की थी। अयान के दिल में कुछ पिघलने लगा। ज़ोया की आवाज़ नरम हो गई। और अब जब तुम मेरी जिंदगी खतरे में डालकर मेरे साथ खड़े हो, तो मैं कैसे ना चाहूं? अयान ने नज़रें चरा ली। इसके दिल में जंग चल रही थी। एक तरफ खतरा, दूसरी तरफ मोहब्बत। ज़ोया, मेरी जिंदगी बहुत सादा है। मैं ना तुम्हारी दुनिया का हिस्सा हूं, ना बन सकता हूं। ज़ोया की आंखों में आंसू आ गए। मुझे तुम्हारी दुनिया नहीं चाहिए, मुझे बस तुम चाहिए। अयान का दिल जोर से धड़का। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, मुझे भी तुमसे मोहब्बत हो गई है। ज़ोया ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। सच? अयान ने मुस्करा कर सर हिलाया। शायद इस रात, जब तुमने अंधेरे में मेरा हाथ पकड़ा था। ज़ोया के आंसू मुस्कुराहट में बदल गए। वो दोनों एक दूसरे को देखते रहे। ये लम्हा उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा था, लेकिन किस्मत को शायद ये खुशी मंजूर नहीं थी। इसी वक्त पुलिस अफसर उनके पास आया। मिस्टर अयान, हमें आपसे कुछ बात करनी है। अयान चौंका। जी? अफसर ने संजीदगी से कहा, हमें शुबा है कि आप भी इस केस में शामिल हो सकते हैं। ज़ोया का दिल धक से रह गया। क्या? अफसर ने कहा, हमें आपको हिरासत में लेना होगा। अयान के हाथों में हथकड़ी लगा दी गई। ज़ोया चीख पड़ी। नहीं। अयान ने इसकी तरफ देखा और मुस्कुराया, डरना मत, मैं वापस आऊंगा। ज़ोया की दुनिया एक लम्हे में टूट गई। मोहब्बत मिली भी तो जुदाई के साथ। पुलिस वैन आहिस्ता आहिस्ता जेल के गेट के अंदर दाखिल हुई। ज़ोया बाहर खड़ी रह गई। इसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अयान ने जाते जाते आखिरी बार पलट कर देखा और हल्की सी मुस्कुराहट दे दी, जैसे वो इसे यकीन दिला रहा हो कि सब ठीक हो जाएगा। मगर अंदर दाखिल होते ही हकीकत बदल गई। भारी दरवाज़ा बंद हुआ। टेनाइक, अयान अब कैदी था। एक पुलिस अफसर ने सख्त लहजे में कहा, सेल नंबर 17। अयान खामोशी से चलता गया। जेल की फिजा खौफनाक थी। दीवारें, सलाखें, कैदियों की नज़रें, सब कुछ अजनबी और ख़तरनाक लग रहा था। इसे एक छोटे से सेल में बंद कर दिया गया। दरवाज़ा बंद हुआ। खामोशी छा गई। अयान ने दीवार से टेक लगा ली और आंखें बंद कर लें।
ज़ोया, अचानक साथ वाले सेल से आवाज़ आई, तुम नए हो? अयान ने देखा एक उधेड़ उम्र आदमी सलाखों के पीछे बैठा था, चेहरा थका हुआ मगर आंखें तेज। हाँ, वो आदमी हल्का सा मुस्कुराया। तुम्हारा नाम? अयान। आदमी चंद लम्हे खामोश रहा, फिर अचानक बोला, तुम ज़ोया खान के साथ हो ना? अयान चौंक गया, आपको कैसे पता? आदमी करीब आया, इसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। क्योंकि मैं इसके बाप का पुराना दोस्त हूं। अयान हैरान रह गया। क्या? आदमी ने गहरी सांस ली। मेरा नाम हमीद है और मुझे असद खान ने यहां बंद करवाया है। अयान के दिल की धड़कन तेज हो गई। क्यों? हमीद की आवाज़ भारी हो गई। क्योंकि मुझे इसका सबसे बड़ा राज पता है। अयान आगे झक गया। कौन सा राज? हमीद ने आहिस्ता से कहा, ज़ोया के वालिद बीमार नहीं, कैद हैं। अयान साकित रह गया। क्या? हमीद की आंखों में गुस्सा था। असद खान ने कंपनी हथियाने के लिए अपने ही भाई को कैद कर रखा है। अयान की माटियां भींच गईं। यानी ये लड़ाई सिर्फ ज़ोया की नहीं थी, ये एक खानदान की जंग थी। अयान ने आहिस्ता से कहा, अब ये जंग हम जीतेंगे, और पहली बार। अयान के चेहरे पर खौफ नहीं, अज़्म था। ज़ोया पूरी रात नहीं सोई। हर लम्हा इसके ज़हन में एक ही मंजर घूम रहा था। अयान के हाथों में हथकड़ी, वो आईने के सामने खड़ी थी, आंखें सूजी हुई मगर चेहरे पर अब कमजोरी नहीं थी। अब बस वो खुद से बोली, मैं अब नहीं डरूंगी। रेहान कमरे में दाखिल हुआ। तुमने मुझे बुलाया था? ज़ोया ने मुड़कर देखा। हमें अयान को जेल से निकालना है। रेहान ने गहरी सांस ली। ये इतना आसान नहीं है। पुलिस को यकीन है कि वो इस केस में शामिल है। ज़ोया ने मजबूत आवाज में कहा, तो हम उन्हें सच दिखाएंगे। रेहान हैरान हुआ। कैसे? ज़ोया ने आहिस्ता से कहा, मैं मीडिया के सामने जाऊंगी। रेहान चौंक गया। तुम पागल हो गई हो? असद खान तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। ज़ोया ने पहली बार बेखौफ होकर जवाब दिया। वो पहले ही मुझे मारने की कोशिश कर चुका है। अब डरने का कोई फायदा नहीं। खामोशी छा गई। मैं सबके सामने सच बताऊंगी कि मैं जिंदा हूं। रेहान ने सर पकड़ लिया। ये तो जंग का ऐलान है। ज़ोया ने हल्की सी मुस्कुराहट दी। हाँ, और ये जंग में जीतूंगी। इसी शाम एक बड़े न्यूज़ चैनल के बाहर हुजूम लगा हुआ था। कैमरे, रिपोर्टर्स, माइक। दरवाज़ा खुला और अंदर दाखिल हुई ज़ोया खान। हाल में शोर मच गया। ये जिंदा है? ये कैसे मुमकिन है? ज़ोया स्टेज पर पहुंची और माइक के सामने खड़ी हो गई। इसके हाथ कांप रहे थे मगर आवाज़ मजबूत थी। मेरा नाम ज़ोया खान है और मैं जिंदा हूं। पूरा हाल खामोश हो गया। मेरे चचा असद खान ने मुझे मारने की कोशिश की और मेरे वालिद को कैद कर रखा है। कैमरे मुसलसल फ्लैश कर रहे थे और जिस शख्स को अब मुजरिम समझ रहे हैं वो बेकसूर है। ज़ोया की आंखों में आंसू आ गए। अयान ने मेरी जान बचाई है। पूरे मुल्क में यह खबर आग की तरह फैल गई। लेकिन ज़ोया नहीं जानती थी कि टीवी स्क्रीन के सामने बैठा एक शख्स गुस्से से कांप रहा था। असद खान। इसने टीवी बंद किया और चीखा, अब तुमने खुद जंग शुरू की है। तूफान अब पूरी ताकत से आने वाला था। टीवी चैनल्स पर सिर्फ एक ही खबर चल रही थी, ज़ोया खान जिंदा है। पूरे शहर में हलचल मच चुकी थी मगर एक जगह ऐसी थी जहां खामोशी तूफान से पहले की खामोशी बन चुकी थी। असद खान अपने ऑफिस में खड़ा खिड़की से बाहर देख रहा था। इसकी माटियां बंद थीं, आंखों में गुस्सा जल रहा था। वो लड़की समझती क्या है खुद को। इसने मेज पर जोर से हाथ मारा। कमरे में मौजूद आदमी डर गए। सर, मीडिया अब आपके खिलाफ जा रहा है। असद खान आहिस्ता से मुस्कुराया। मीडिया? वो अपनी कुर्सी पर बैठ गया। जंग मीडिया से नहीं जीती जाती, खौफ से जीती जाती है। एक आदमी आगे बढ़ा। आपका हुक्म? असद खान ने सर्द लहजे में कहा, ज़ोया को जिंदा पकड़कर मेरे सामने लाओ। और अयान? असद खान की आंखों में खतरनाक चमक आई। इसे जेल में ही खत्म कर दो। इसी वक्त जेल के अंदर अयान और हमीद बैठे बात कर रहे थे। हमीद ने आहिस्ता से कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कुछ होने वाला है? अयान ने पूछा। क्या मतलब? अचानक जेल की लाइट्स बंद हो गईं। पूरा ब्लॉक अंधेरे में डूब गया। कैदी शोर मचाने लगे। क्या हो रहा है? दौर से कदमों की आवाज आने लगी। ठक ठक ठक। हमीद ने सरगोशी की। ये आम गार्ड्स नहीं है। अयान का दिल तेज धड़कने लगा। सेल के सामने चंद सायरा के चाबी घूमी। किल्क। दरवाज़ा खुला। एक आदमी अंदर आया। हाथ में चाकू था। काम खत्म करो और निकल जाओ। अयान समझ गया ये हादसा नहीं था,
یہ قتل تھا، حمید نے چیخ کر کہا، بھاگو۔ ایان نے آدمی کو زور سے دھکا دیا اور باہر نکل بھاگا۔ جیل کے اندر افراتفری مچ گئی، سائرن بجنے لگے۔ ایان بھاگتا ہوا کوریڈور میں پہنچا، مگر سامنے ایک اور آدمی کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں بندوق تھی۔ ایان رک گیا، وہ آدمی مسکرایا، کھیل ختم ایان۔ گولی چلنے کی آواز گونجی، گولی چلنے کی آواز پوری جیل میں گونج اٹھی۔ ایان نے آنکھیں بند کر لیں، ایک لمحہ، دو لمحے، مگر اسے درد محسوس نہیں ہوا۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولی، سامنے کھڑا آدمی زمین پر گرا ہوا تھا، اس کے پیچھے پولیس کھڑی تھی، ہتھیار پھینکو۔ ایک افسر چیخ رہا تھا۔ حمید ہانپتا ہوا ایان کے پاس پہنچا، تم بچ گئے۔ ایان کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ پولیس نے تمام حملہ آوروں کو گرفتار کر لیا۔ ایک افسر ایان کے پاس آیا، تم ٹھیک ہو؟ ایان نے سر ہلایا۔ افسر نے سنجیدگی سے کہا، ہمیں تم سے بات کرنی ہے۔ کچھ دیر بعد ایان ایک کمرے میں بیٹھا تھا، سامنے وہی افسر بیٹھا تھا جس نے اسے گرفتار کیا تھا۔ ہمیں تم پر شک تھا، مگر اب حقیقت واضح ہو گئی ہے۔ ایان نے حیرت سے پوچھا، کیا مطلب؟ افسر نے فائل میز پر رکھی، یہ سب اسد خان کا پلان تھا، جیل میں تمہارا قتل بھی۔ ایان کی ماٹیاں بھینچ گئیں۔ افسر نے کہا، اور زویا کی پریس کانفرنس کے بعد ہمیں بہت ثبوت ملے ہیں۔ ایان کی آنکھوں میں امید چمکی، تو اب؟ افسر نے مسکرا کر کہا، تم آزاد ہو۔ ایان کو یقین نہیں آیا، کیا؟ ہاں، تم بے قصور ہو۔ ایان نے گہری سانس لی۔ سب سے پہلا خیال اس کے ذہن میں آیا، زویا۔ اسی وقت زویا اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، دروازے پر دستک ہوئی، وہ آہستہ سے دروازے تک گئی اور کھولا۔ سامنے ایان کھڑا تھا۔ چند لمحے دونوں بس ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر زویا بھاگ کر اس کے گلے لگ گئی۔ تم ٹھیک ہو؟ ایان نے اسے مضبوطی سے تھام لیا، اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر قسمت نے ابھی آخری امتحان باقی رکھا تھا۔ اسی لمحے ریحان بھاگتا ہوا آیا۔ ہم مشکل میں ہیں؟ ایان نے چونک کر پوچھا، کیا ہوا؟ ریحان کی سانسیں تیز تھیں۔ اسد خان نے زویا کے والد کی لوکیشن بھیج دی ہے۔ زویا ساکت رہ گئی۔ کیوں؟ ریحان نے آہستہ سے کہا، وہ چاہتا ہے تم خود آؤ اور یہ جنگ ختم ہو۔ آخری مقابلہ قریب آ چکا تھا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ زویا کی آواز کانپ گئی، وہ ابو کو کیوں نشانہ بنا رہا ہے؟ ایان نے دانت بھینچ لیے، کیونکہ وہ جانتا ہے مجھے کیسے باہر نکالنا ہے۔ ریحان نے موبائل ایان کے سامنے رکھا، یہ لوکیشن ہے، شہر سے باہر پرانی فیکٹری۔ ایان نے بغیر ایک لمحہ ضائع کیے جیکٹ اٹھائی، ہم ابھی جا رہے ہیں۔ زویا نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا، میں بھی جاؤں گی۔ ایان نے سختی سے کہا، نہیں زویا، یہ خطرناک ہے۔ زویا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ میرے ابو ہیں اور تم میری زندگی ہو، میں دونوں کو کھونے کا رسک نہیں لے سکتی۔ ایان چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے سر ہلا دیا، ٹھیک ہے، مگر میرے ساتھ رہنا۔ رات کا وقت تھا، پرانی فیکٹری سنسان کھڑی تھی، ٹوٹے شیشے، زنگ آلود دروازے اور خوفناک خاموشی۔ گاڑی رکی، ایان، زویا اور ریحان نیچے اترے۔ دروازہ خود بخود چرچراتے ہوئے کھلا، اندر اندھیرا تھا۔ اچانک تالیاں بجنے کی آواز آئی، واہ! محبت واقعی انسان کو بہادر بنا دیتی ہے۔ اسد خان سایوں سے باہر آیا، اس کے پیچھے زویا کے والد کرسی سے بندھے ہوئے تھے۔ زویا چیخ پڑی، ابو! اسد ہنسا، آرام سے، ابھی زندہ ہیں؟ ایان نے غصے سے کہا، تمہارا کھیل ختم ہو چکا ہے اسد۔ اسد نے پستول ایان کی طرف تان دی، نہیں ایان، اصل کھیل اب شروع ہوا ہے۔ اسد نے زویا کی طرف دیکھا، تمہاری وجہ سے سب کچھ برباد ہوا۔ زویا نے ہمت سے کہا، سچ کبھی نہیں ہارتا۔ اسد کی آنکھوں میں پاگل پن آ گیا، تو آج دیکھتے ہیں محبت جیتتی ہے یا طاقت۔ اس نے بندوق سیدھی ایان کی طرف کر دی۔ زویا چیخی، نہیں، گولی چلنے ہی والی تھی کہ دھڑام! پولیس نے چاروں طرف سے فیکٹری کو گھیر لیا۔ اسد خان، ہتھیار پھینکو! اسد بوکھلا گیا۔ تم نے پولیس کو بلایا؟ ریحان مسکرایا، ہم اتنے بھی بے وقوف نہیں ہیں۔ اسد نے آخری بار بندوق اٹھائی، وہ ایان پر فائر کرنے والا تھا کہ ایان اس پر جھپٹ پڑا، دونوں زمین پر گر گئے۔ لڑائی شروع ہو گئی، ایک مکہ، دوسرا مکہ، آخر کار ایان نے بندوق اسد کے ہاتھ سے چھین لی۔ پولیس نے فوراً اسے پکڑ لیا، ہتھکڑیوں کی آواز گونج اٹھی۔ اسد چیخ رہا تھا، یہ ختم نہیں ہوا۔ افسر نے سختی سے کہا، اب سب ختم ہو گیا ہے۔ زویا بھاگ کر اپنے والد کے پاس پہنچی، ابو اب ٹھیک ہیں؟ انہوں نے بیٹی کو گلے لگا لیا، میری بہادر بیٹی۔ ایان چند قدم دور کھڑا تھا،
زویا کے والد اس کے پاس آئے، کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر انہوں نے کہا، مجھے تم پر شک تھا، مگر تم نے میری بیٹی کی زندگی بچائی ہے۔ ایان کی آنکھیں نم ہو گئیں، سر، میں زویا سے محبت کرتا ہوں۔ انہوں نے زویا کا ہاتھ ایان کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ اب مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ زویا کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ کچھ مہینے بعد روشنیوں سے سجا حال، خوشی، ہنسی، دعائیں، زویا اور ایان کا نکاح ہو رہا تھا۔ قاضی صاحب نے پوچھا، زویا بنت خالد، کیا اب کو ایان بن احمد قبول ہے؟ زویا نے مسکرا کر کہا، قبول ہے ایان بن احمد۔ ایان نے زویا کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، قبول ہے۔ تالیاں گونج اٹھیں۔ زویا نے آہستہ سے کہا، ہم جیت گئے۔ ایان نے مسکرا کر جواب دیا، نہیں، محبت جیت گئی۔